Welcome to brand new show Face to Face. This is a program which has been initiated by DME Media School. DME Media School is part of Delhi Metropolitan Education. It has three schools. The other two schools are DME Management School and DME Law School. We have four academic programs that DME offers. These include BA LLB, BBA LLB, BBA and BAJMC. DME is one of the premier institutions affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University. We are ahead in everything, be it academic or co-curricular or extracurricular activities. And since the time this COVID-19 is struck in the month of March, we geared up to meet that challenge, and we organize all online classes to complete the syllabus in that particular semester. Then we also conducted online training sessions in the form of this internship during the summer, since it was not possible for the students to go to media organizations for conducting their internship. Thereafter, we prepared for the next academic session. The next academic session, which is the ensuing academic session, is started on 4th of August. This is again, I mean, much before other institutions could decide about starting the classes. And we have gone at a two-stage strategy, wherein we have produced, all the faculty members have produced the video lectures in respect to papers, and then we are holding classes in the form of tutorials, wherein the grievances or the queries of the students are addressed. So let us have a look on the digital campus of DME. DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a two-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures, and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students. Welcome back to Face to Face, and as I was telling you already, this is an initiative of DME Media School. DME Media School is one of the top media institutions in the country. We organize several such activities which have an international character. Particularly, I can tell you about the International Conference on Media, which we organize every year. This year also we planned initially it in March, but because of this COVID-19, it could not happen that time. Thereafter, we planned it in the month of June, and that turned out to be the world's first digital live conference, wherein we could connect with scholars from all over the world. And similarly, last year we organized International Film Festival SIFI, and this year we are going to repeat that, the second edition of SIFI. Besides this, we organize every month the BG Varghese Lecture Series. This has been instituted in the name of the renowned journalist BG Varghese. In this lecture, this is a special lecture in which we invite very distinguished people from different fields to speak on those subjects, and all the students attend this. In this academic session also, we
mode has taken place only this week. This was taken by an eminent filmmaker, Ashwini Chaudhary. So we are into all kind of activities because we believe that by undertaking these kind of activities, the grooming of the students will happen very fast. And talking about this particular program, Face to Face, this is an interactive program. This is a chat show wherein the dean is talking to 3 students in each episode. Since I am the dean, so I am doing this interaction with 3 of my students. These 3 students have been drawn from 3 batches. One student is from the outgoing batch. Outgoing batch means the batch which should have passed out till this time, but due to this pendency of the exam and the policy issues wherein the university is yet to take a decision. So one student is from that batch, then one student is from the 3rd year. These are the students who are basically have been promoted from 4th semester to 5th semester, and the third one is who has been promoted from 2nd semester to 3rd semester, so they are from the 2nd year. So let us have a look who all 3 students are there in today's episode. So welcome back again to Face. Now everybody has seen who are the 3 students with us. And as is customary in every episode, we start interacting with the senior most person. So the 3 persons, now if I can name them, Adarsh Sharma is there, who is from the outgoing batch. Then we have Miti Singh, who is from 3rd year. And then we have Shreya Jha, who is from 2nd year. So starting initiating interaction with Adarsh. Adarsh, in your AV, we have seen all your interest, and since you are more oriented towards academics and you have been writing, you have been presenting papers in the conference, but then we would like to listen from you only what all are your interests and what are your passions. Good evening, sir. Good evening. सर मैं जर्नलिज्म कोर्स में आया ही इस वजह था क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पसंद था पढ़ना। मैं अलग अलग मतलब कोर्स से अलग हटके चीजें पढ़ना। जो जब मैं स्कूल में था तब भी मैं पढ़ता रहता था कि पेपर पढ़ रहा हूँ या कोई मैगजीन पढ़ रहा हूँ या जो इंसिडेंट पुराने हो चुके हैं मतलब हिस्ट्री से अलग हटके उनके बारे में पढ़ता रहता था। फिर धीरे धीरे मुझ में लिखने का भी थोड़ा वो हुआ कि अलग अलग घटनाओं को मैं उन पर मेरा क्या टेक है या मैं उनको कैसे लिख सकता हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये कोर्स ऑप्ट किया था। तो मेरा सबसे ज्यादा जो मैंने जो 3 साल का टाइम है जो इसका सबसे ज्यादा यूज मैंने एक तो पढ़ने में किया। अलग अलग चीजें मैंने पढ़ी, पेपर पढ़े, साथ ही साथ जब मैं आया तो वो टाइम था जियो भी आ चुका था तो डिजिटल जो मीडियम है उसके तरफ भी ज्यादा वो बढ़ने लग गया। तो अलग अलग जो पोर्टल्स हैं उनसे जानकारी हुई, जैसे सत्याग्रह, दीवार, न्यूज लॉन्ड्री वगैरह। तो उनको पढ़ा, अलग अलग एनालिसिस पढ़े, जाना जो वर्ल्ड है उसके बारे में कैसे चीजें चल रही हैं, जो अलग अलग आइडियोलॉजी हैं और पूरी राजनीति कैसे चलती है उसके बारे में सीखने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह सकता सीख गया क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत कंफ्यूजन था कि किसकी तरफ रहें, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हालत ये थी कि मीडिया खुद कुछ रिपोर्ट कर रहा है, 2 दिन बाद वो गलत चीज हो जाती थी। तो सबसे पहले तो टाइम इसमें लगा कि पहले खुद पढ़ें और समझें कि सच में सही क्या है। उसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया।
उसके साथ साथ मैंने सिनेमा बहुत एक्सप्लोर किया, जो मैंने इंडियन सिनेमा पूरा बहुत एक्सप्लोर किया। मुझे थोड़ा तो इंडियन में पहले सबसे पहले ये रहता था कि बॉलीवुड ही देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड का जो पुराना सिनेमा है, भले ही वो पैरेलल सिनेमा के टाइम का हो या जो 2000 के बाद का जो अलग अलग दिवाकर बनर्जी और दूसरा सिनेमा, वो मैंने एक्सप्लोर किया। धीरे धीरे साउथ की फिल्में देखता था, लेकिन साउथ में भी पता चला कि जो मूवी ज्यादा पॉपुलर हो रही है वो ज्यादातर मसाला फिल्में हैं। तो धीरे धीरे साउथ में जो आर्ट फिल्में थी वहाँ की, जो नई नई बन रही है, जो अलग अलग जो स्टोरी लेके आ रहे हैं, तो साउथ में भी फिर अलग अलग जो कन्नड़ का, मलयालम, तेलुगु, तमिल सब सिनेमा एक्सप्लोर किए। बाद में पंजाबी फिल्में भी देखी, गुजराती भी देखी, तो एक अच्छा खासा सिनेमा भी एक्सप्लोर किया। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री का एक अलग वो बना हुआ था, अलग अलग लोग काम कर रहे थे, जो ग्राउंड रियलिटी थी उसको लेके आ रहे थे। कि जैसे कुछ काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, सीवेज जो वर्कर होते हैं जो उसको साफ करते हैं, तो उस तरह की डॉक्यूमेंट्री देखी लोगों पे कि कैसे जो रियल चीज है वो दिखाई जाती है। तो 3 साल में काफी वो रहा, काफी खुद को मैंने मतलब नॉलेज गेन करने में कोशिश की कि ज्यादा मैं चीजों को जान पाऊं, ज्यादा अलग अलग चीजों को देख पाऊं, समझ पाऊं। तो डॉक्यूमेंट्रीज तुमने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, या किस तरह से डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, किस प्लेटफॉर्म पे देखते हो? सर सुमंद्रा सर ने बीच में सजेस्ट की थी, जब वो पढ़ा रहे थे, तो आनंद पटवर्धन की कई डॉक्यूमेंट्री थी, राम के नाम थी, और एक जो दलित मूवमेंट है उसके ऊपर थी, एक वो देखी थी। एक दो डॉक्यूमेंट्री ऑन और थी उनकी। साथ ही साथ कुछ यूट्यूब पे चैनल है, एक स्कूप बुक जो पब्लिकेशन है, जो मीडिया हाउस है, उसका एक अनस्क्रिप्टेड करके चैनल है, तो उस पे भी एक एंकर है समनीश भाटिया, तो उनके भी कुछ शो थे जिसमें वो अलग अलग पॉलिटिशियन से बात करते थे, वो देखे। और भी अलग अलग एक वॉइस इंडिया वॉइस वो था, तो जैसे एक अरविंद केजरीवाल के ऊपर वॉइस ने बनाई थी, इनसिग्निफिकेंट मैन करके, वो डॉक्यूमेंट्री काफी अच्छी थी, वो देखी मैंने। और भी कई चैनल हैं यूट्यूब पे जो अलग अलग जैसे शहरों में जाके वहाँ पे अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग जो चीजें हैं उनको दिखा रहे हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी। तो फिल्मों की तुमने बात की कि इंडियन सिनेमा में तुमने डिफरेंट लैंग्वेज वाला लैंग्वेज सिनेमा भी देखा और पैरेलल सिनेमा के दौर की फिल्में भी देखी। तो विदेशों में तुमने कहाँ कहाँ का मतलब हॉलीवुड का कुछ सिनेमा देखा, और आई मीन जो जो कल्ट फिल्में हैं बेसिकली, वैसे तो सभी लोग देखते हैं, और यूरोप का कोई सिनेमा देखा, या जापान का, ईरान का, क्या क्या मतलब किस तरह की फिल्में देखी? सर बाहर मैं इंडिया में इतना कंटेंट मेरे पास हो गया था कि मैं बाहर निकल नहीं पाया, तो बाहर का तो मैंने पॉपुलर जो सिनेमा है जैसे जीओटी वगैरह या दूसरी सीरीज हैं वो भी मैंने कमी देखी है, और साथ ही साथ जो कल्ट सिनेमा है वो भी कमी देखा है। कुछ मूवी जरूर देखी हैं जो ज्यादा फेमस हो जाती थी, लेकिन हाँ एक दो सर ने मूवी बताई थी जो माजिद मजीदी हैं ईरान के, तो उनकी कुछ मूवी देखी थी। और सर बाहर का तो जो मेनली जो सर बताते थे या यशस्वी का मैम क्लास में दिखाती थी, जैसे बाइसिकल थीफ दिखा रही हैं, या और जो ऐसी कल्ट जो मूवी दिखा रही हैं, मेरे पास फिल्म एप्रिसिएशन था तो उसमें कुछ मूवी देखी थी। उसके अलावा बाहर का मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं चलो किया। ठीक है, बाइसिकल थीफ देख ली तो तुमने बाहर की सिनेमा की ग्राउंडिंग तो कर ही ली। बाइसिकल थीफ के बारे में कोई एक लाइन बताओ जो तुम बता सकते हो। सर बाइसिकल थीफ में यही था कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो जो मतलब एक लेवल पे जाके जो बिल्कुल जो बेसिक लेवल है कि वास्तव में लोग कैसा फील करते हैं वो दिखाया था। जब हम फिल्मों को देखते हैं तो वो एक सतही तौर पे टच करती हैं, बिल्कुल कोई खुश हो गया, कोई काम हो गया, बिल्कुल दुखी हो गया, लेकिन जो इमोशंस धीरे धीरे टच करते हैं कि कोई एक चीज को कैसे ले रहा है, उसकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उससे उसके जो दिल है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी सोच पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो उसने बहुत बारीकी से दिखाया था। वैसा और, जो इंडियन। जी सर। और जो पढ़ाई करते हो, मतलब जो तुम्हारी रीडिंग है, वो क्या पढ़ते हो? सर पढ़ने में मैं 11th-12th से इंडिया टुडे पढ़ता था मैगजीन, तो वो मैं पढ़ता रहा पूरे 3 साल। साथ ही साथ जो अब तो ज्यादातर उनके वो अपनी जो स्टोरीज है उनको वेबसाइट पे भी डाल देते हैं, तो जैसे तहलका हुआ, कारवां हुआ और डाउन टू अर्थ वगैरह, इन सब मैगजीन के जो जो आ जाते थे, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो अलग अलग स्टोरी, या कभी कभार ये होता था कि कोई स्टोरी थोड़ा वायरल टाइप हो गई तो वो खोज के जाके पढ़ ली। और कोई जैसे न्यूज पेपर ने कोई अच्छी स्टोरी छापी, उनके जो एडिशन होते थे जैसे संडे एडिशन वगैरह वो पढ़े। साथ ही साथ जो कुछ हिंदी की बुक्स भी पढ़ी, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी लेकिन
ठीक ठाक कोशिश की कि पुराना जो हिंदी लिटरेचर है उस पे भी जाके थोड़ा बहुत पढूं। जैसे एक बहुत कल्ट नोवेल है राग दरबारी, तो वो श्रीलाल किसने लिखा है राग दरबारी? श्रीलाल शुक्ल जी ने। तो वो भी कोशिश करी, तो उसमें पढ़ा, वो वास्तव में मतलब बहुत अच्छा लगा पढ़ के। साथ ही साथ प्रेमचंद जी को पढ़ा, महादेवी वर्मा, इन सबको भी पढ़ा के थोड़ा पुराना जो लिटरेचर है तो पुराने टाइम के बारे में उस लिटरेचर के थ्रू जान पाएंगे पुराना टाइम कैसा होता था। वो तुमने सारी मैगजीन्स पढ़ ली, सारा लिटरेचर पढ़ लिया, कैरावान और डाउन टू अर्थ जैसी मैगजीन तुमने पढ़ ली, तो अब क्या बचा पढ़ने के लिए? नहीं सर, अभी एक्चुअली इतनी सारी मैगजीन पूरी एक साथ नहीं पढ़ पाता था, तो पूरी मैगजीन में इंडिया टुडे ही पढ़ पाता था, लेकिन इन मैगजीन्स के कोई स्टोरी जो हाईलाइट हुई उसकी पूरी नहीं पढ़ता था, लेकिन जो मेन रहता था वो मैं पढ़ लेता था, या जो मेन स्टोरी आती थी वो मैं पढ़ लेता था, जो मेन उसके रिपोर्टर्स वगैरह आते थे वो। ओके, सो गुड आदर्श, तुमने तो बड़ा एक बहुत ही वास्ट व्यू सबके सामने रखा, एंड इट शुड बी मोटिवेटिंग, आई मीन सिंस यू आर नाउ ग्रेजुएटिंग, बट देन फॉर योर जूनियर बैचेस, दोज हु आर लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम नाउ और हु माइट बी लिसनिंग लेटर और मस्ट बी लुकिंग watching on the Facebook live or later on YouTube, I think at least some of you will get motivated the way you have conducted all 3 years in DME Media School. So moving on to Meeti Singh. Meeti, I mean, we all know, we have seen in your AV, but otherwise also we all know that you are full with energy, you are so active, and you are good in academics, and you are good in other activities as well. But then what will you tell us all about your passions? Sir, actually, the passion that I have is a long list. So I really want to explore myself in each and every field that I've been doing in last 2 years in DME, so that I be a perfect one in one that I want actually to be. I don't want to skip anything in life. I just want to cover traveling. I just want to cover eating. I just want to cover, being active, participate in a lot of curricular activities. So my passion is long list down. So if I talk about passion, it will take approximately so much time. But yes, the one thing I love is exploring, sir. Maybe I don't know how much difficult it is for me, but I would definitely choose exploring over anything, whether it's my field or not. Like when I came to DME, I wasn't a BJMC person. I was in DU. The one day I decided that I don't want to do this English honors. I want to explore myself. So I talked to my parents and I came to DME for BJMC. So I decided, no, I'll be just reporter, I'll do anchoring, and that's my future and I'm set to it. Then I talked to Bala ma'am and she told me so many things, so many knowledge. And finally I started exploring. I started participating in photo walks. I started to make some movies, short clips, radio features. So there I realized that if we try, we can be perfect in many ways and many fields as well. It's just not that we want to be perfect in just one way. I cannot be artist, but I can be an artist and a writer as well. So I just learned this thing in DME, and I think this energy should be in every student to explore, because if you explore, you're going to get golden points for sure and definitely. But what is the boost? I mean, you said that there's a long list of your passions. There could be a long list definitely of your interest, and everybody keeps on exploring. You must be exploring more. But definitely there must be one thing which is closest to your heart. What is that? So one thing that is closest to my heart is that I just want to own a PR agency of my own. I just want to be in that top 10 women that is a woman businesswoman. So that is my passion. I'm trying my hard to be there, because to be a PR person, you need to go through a lot of things. So that's why one reason why I keep on exploring is to get the experience from each and every field. So this is my dream, and I am so sure that I will complete this and I'll be there in top 10, definitely, sir. But what will happen about your anchoring and all if I mean you go to the PR then? So actually anchoring is like really, kind of my hobby. I wouldn't take that as a career, because when I came, so I thought that anchoring is very easy. You just have to be very presentable, good pronunciation and a personality on the screen. But now I realize that anchoring is way too
vast area it is. So for me, after studying all this, I realized that the best field for me would be PR. So definitely anchoring I would keep as a side option wherever I get an option to present or to give a lecture, maybe in future, or to be a guest, I would definitely choose it. But as a passion to make as my career, that would be PR, sir. But what about reading? Do you read something? So in first year, I used to do no reading. But then after Bala ma'am said that you should be reading, you're a journalist student. So I started reading, not at particular anything, but yes, I have downloaded so many apps. I keep on reading from notifications. The one which interests me, like if it's something about entertainment, so I definitely go and read for it. So I have some apps in my phone from where I get the notification, and then I can read whatever is in my interest. And what kind of activities you participate in DME Media School? Sir, a lot. Debate, rangoli making, dance, music, drawing, painting, writing. And this time I just participated in ICANN and also wrote a research paper, which was a surprise to myself, only to me, because I expected that I would write a content word 4,000 words, but this was only possible because DME gave me the opportunity to present my paper and with the support of my teacher. Okay, so on what you presented the paper? So I presented my paper on paradigm shift in gay representation in Hindi cinema. Did you listen to the paper because the Adarsh also presented a paper? Did you listen to his paper also? So I was listening, but then I got disconnected, so I couldn't complete it. Okay. Adarsh, you were there throughout the session. Did you listen to the Meety's paper? Yes, sir, I was there. So how was it? अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। जो उसको लेके जो एक मतलब एक टैबू बना हुआ है, उसको लेके कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है बॉलीवुड में, उसको लेके बहुत अच्छा था। शायद एक और फिल्म है, एक अरविंद स्वामी की एक फिल्म है डैडी करके, फुल नाम मुझे नहीं पता, डैडी है उसमें, तो वो भी इसको एक बहुत अच्छे ढंग से दिखाती है इस इशू को, तो उसको भी इंक्लूड किया जा सकता था रिसर्च में। तुम्हारा पेपर किस पे था आदर्श? मेरा पेपर था सर के हाउ यूथ इज कंज्यूमिंग न्यूज। कंज्यूमिंग न्यूज? यस सर, किस मीडियम से। हाउ डिड यू डू दैट? सर मेरे दिमाग में 3-4 आइडिया थे जब हमें रिसर्च करनी थी, तो मनवीत मैम ने मुझसे कहा था कि इसी टॉपिक पर करो, तो फिर उसी टॉपिक को लेके सोचा, फिर क्वेश्चनेयर बनाया मनवीत मैम की हेल्प से और वो लोगों को भेजा। तो उसमें अलग अलग मैंने क्वेश्चन डाले थे कि वो क्या पढ़ते हैं, कैसे वो न्यूज देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज उन्हें कहाँ से मिलती है, तो उन सब क्वेश्चंस का जो आंसर था उनको मैंने एनालाइज किया और उसके बाद अपने कंक्लूजन ड्रॉ किए। मुझे लगता है कि मीठी एक चीज तुम भूल गई बताना, तो मैं सोचा याद दिला दूं तुम्हें। क्या हो सकता है बताओ? सर मे बी फेयरवेल इज ऑन, फेयरवेल से रिलेटेड होगा कुछ? नहीं, फेयरवेल से तो रिलेटेड वैसे मुझे भी याद नहीं था, बाला मैम ने रिमाइंड कराया मुझे भी। Yes sir, 28th we have farewell. नहीं, I mean this is something about your interest. I think you have also been doing theater, which you did not mention. Yes sir, I was doing theater. Theater was not my passion, sir. I just came in this college. No, but I asked you what all activities you have been participating. Oh yes sir, it's theater, but because in theater I have been quite off for quite long. So I might have missed it because I wasn't active in theater these days. So that's in my mind. So would you like to tell something, I mean, in what kind of theater or what plays you participated in? Yes, sir. When I was there in first year, I participated in DJMC Got Talent. That was organized specially from our batch, where we have to present our talents. So I participated in that and I got first position also. And after that, I have been doing a lot of ADMAT competitions in various colleges. So till now, we as a team, our theater team, Tabir has got almost 7 prizes in ADMAT in various colleges. So we also used to do ADMAT, and after that we also presented a play, Aina in our college as well, in which I was the lead character.
Nyath. So, but after that, I just took a break from theater, sir, because I thought I should be investing more in other societies or other programs. So that's why I just took a break from theater, and I just. लेकिन मीठी, तुम एकेडमिक्स में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हो, तो उसके लिए क्या स्पेशल एफर्ट्स करती हो? Sir, actually, the reason behind this academic thing is my parents. They are very supportive. Like, they never tell me that you do this thing, you do that thing. They are always like, "Beta, you do anything you want to. We are there to support you." So in return, I always try to give them best. So my dad always feels very proud when I score good marks. So he calls all of the relatives and say that, "Oh, she is participating, yet she scores good." So for him, I do a lot of effort during my exams. And also my fixed system is, whenever I come back from college, whatever is being taught that day, I just note it down. So what happens is that it keeps on, it stays in my mind that yes, this lecture mein teacher pointed out this thing and this is very important. So this is one tip that I do every day. After coming back to college, I just maintain a diary. So that's why I always have a notes, and everyone is like, "Notes, please share the notes." So this is the reason. And other than that, sir, I love studying. And BJMC is a field I really love. So in that, if even in that field I don't study, then it is a waste for me coming to BJMC, because I love it. That's why. Yeah, in fact, मीठी, there is a misconception कि जो पढ़ाई में अच्छा है वो बाकी चीजें नहीं कर सकता, या one who is taking part in other activities may not be good in academics. I mean, both go hand in hand. So if one is good in one, will also be good in the other. Okay, so moving on to Shreya, she would have got bored for last 20-25 minutes, isn't it? I mean, unmute करो अपने को, श्रेया. Unmute करो, unmute करो. Unmute करो. वो उसमें unmute किया हुआ था इस वजह से. Sorry. Okay, so you are listening to both of your seniors. So my first question to you as well will be the same. We would like to know about your interests, your inclinations, or any passion that you have. तो एक्चुअली अपने सीनियर्स को ऐसे सुन के इतना ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है, बट जब मैं खुद को देखती हूँ तो लगता है कि अभी मैंने कुछ नहीं किया है लाइफ में. बट नहीं, अभी तुम्हारे पास है 2 साल है, कोई दिक्कत नहीं है. सर, तो एक्चुअली इंटरेस्ट बचपन से ही बहुत ज्यादा डांसिंग में रहा है. मुझे बहुत अच्छा लगता है डांसिंग, और एक्टिंग में भी मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा है. और मैं मतलब फनी कैरेक्टर्स वगैरह प्ले करना पसंद करती हूँ, जहाँ पे मैं कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह मिमिक करती हूँ. तो एडमैट्स वगैरह जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें कोई ना कोई पोजीशन आती थी. तो ये दोनों चीजें ऐसी थी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी. मतलब एक तरह से हॉबी है मेरी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत पसंद है मुझे. और इसके अलावा मैं बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, नॉवेल्स मुझे बहुत पसंद है पढ़ना. और मैं चाहती हूँ कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं भी एक ऑथर बनूं, मैं भी एक किताब लिखूं. सो यस सर. श्रेया, हम लोग ऑनलाइन के जमाने में हैं, तो ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन जिस तरह से होता है वैसे नहीं हो पाता, लेकिन वर्चुअल में भी वी ट्राई टू कम्युनिकेट इन ए मैनर विच इज मोर लुकिंग लाइक रियल, राइट? और मीडिया में थोड़ा सा कैमरा फेसिंग सभी को आना चाहिए. So just keep that in mind. Okay, so moving on. I mean, in college, if I ask you in DME Media School, in what all activities you have been participating? So I have been participating in ताबीर थिएटर के जितने भी एक्टिविटीज या जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, I have been participating in that. उसके अलावा भी इतने ज्यादा चीजों में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, बिकॉज थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी इतना ज्यादा नहीं है, जिस वजह से मैंने नहीं करा. बट आई ट्राई कि अब मैं और भी ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट करूँ. नहीं, लेकिन अब तुमने थिएटर में, ताबीर में काम किया, तो फिर मीठी से तुम पहले भी इंस्पिरेशन ले सकती थी. इस प्रोग्राम के थ्रू ही क्यों लिया? पहले कुछ इंस्पिरेशन नहीं लिया मीठी से तुमने? सर, मीठी दीदी से मतलब बाकी चीजों के लिए अभी मैं उनसे मेरा ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं था, बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था तो उनको वो थोड़ी इनएक्टिव मेंबर हो गई थी ताबीर की, तो इस वजह से मेरा उनसे ज्यादा वो नहीं हुआ है. तो तुम्हारे पास तो मौका था, तुम उस गैप को फिल अप करके यू कुड हैव बिकम ए वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ ताबीर. वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ ताबीर थिएटर सोसाइटी. मैं बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करती हूँ. कौन कौन से प्लेस किए तुमने ताबीर में? जो आईना जो प्ले मीठी दीदी ने किया था लास्ट ईयर, इस बार हमने वो ही अनुगूंज में किया था. उसके बाद जितना जो अनुगूंज में नुक्कड़ नाटक किया था हमने, मैं उसमें भी थी. और
एक और हमारा नुक्कड़ नाटक था अपराध, मैंने उसमें भी पार्ट लिया था और 2 एडमैट्स किए हैं और दोनों में हम फर्स्ट पोजीशन पे आए थे। Okay, so you might be continuing with the theater in next 2 years, I believe. Yes sir, I'll be definitely. तो थिएटर के अलावा और किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं सर, अभी तो नहीं किया मैंने और किसी चीज में तो पार्टिसिपेट तुम्हें नहीं किया। वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा अच्छा डांसिंग और एक्टिंग ही लगता है। मतलब अभी तक मेरी सबसे ज्यादा जो एक हॉबी कहते हैं वो मेरी डांसिंग और एक्टिंग ही है। कौन से डांसेस करती हो तुम? भरतनाट्यम डांसर हूँ सर मैं। भरतनाट्यम। तो तुमने कभी फिर इतनी सारी एक्टिविटीज डीएमई मीडिया स्कूल की हुई, वाई आई मीन आईकैन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन किया, और जैसे तुम्हारे शायद तुम किस सेक्शन में हो? सी में हो? बीबी। बी में। तो वो नैना भी है, तो उसने हाँ भी सर। आईकैन में प्रेजेंटेशन किया था। तो तुम्हें करना चाहिए था, आगे आगे करना। और तो बिकॉज आई मीन मीडिया, डीएमई मीडिया स्कूल प्रोवाइड्स these kind of opportunities which you will not get. I mean, had you taken admission in any other institute, you would have never got such a kind of opportunities. आई एग्री, बट एक्चुअली सर जब मैं सीख रही थी डांस, एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी और मेरे नीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, बिकॉज भरतनाट्यम में ऐसे हो जाता है लोगों को। दैट इज व्हाई आई कुड नॉट पार्टिसिपेट अलॉट, क्योंकि मुझे छोड़ना पड़ा था बीच में। तो इस वजह से मेरी प्रैक्टिस अभी काफी ज्यादा छूट गई है, इस वजह से मैंने नहीं लिया सर। तो तुम you were getting training from somewhere, from some यस सर, institute? मैंने काफी साल भरतनाट्यम सीखा था एंड उसके बाद मेरी बहुत ज्यादा तबीयत वगैरह खराब होने लगी थी एंड मेरे पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। दैट इज व्हाई आई कुड नॉट कंटिन्यू इट। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर से कंटिन्यू कर सकती हो। I mean, Indian classical dance, if somebody is doing, there is nothing like that, because most of the youngsters are into Bollywood dances. But if the young people are preserving the rich Indian culture and heritage, there can be nothing more important than that. राइट सर। Okay, so moving on again to Adarsh. Adarsh, if I ask you, because you have spent all 3 years and now you will be starting a new life outside DME, but then during these 3 years, you would have made a lot of friends and you would have come into contact with so many teachers and all. So what will you tell us about your friends, your relationship with your teachers and the campus? सर सबसे पहली बार फ्रेंड्स काफी बने। जब कॉलेज में आया तो पहले दिन से ही फ्रेंड्स बनने की शुरुआत हो गई थी। तो मैं था, मेरे कुछ दोस्त भी थे। एक दोस्त आज हमारे साथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उसका बहुत ज्यादा दुख होता है। एक लगता है कि जो मतलब एक ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई, जो मतलब झेल नहीं सकते थे जिसको हम। लेकिन फिर भी जो बाकी दोस्त बने तो बहुत साथ दिया उन्होंने हर चीज में। मतलब साथ रहे वो, कॉलेज में भी, कॉलेज के बाहर भी, सब जरूरतों में कुछ भी कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई तो की साथ में मस्ती भी की, जो बाहर सब कुछ होता है वो। और जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मतलब कभी भी हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने, किसी भी कंडीशन में। पढ़ाई की बात हो, थोड़ा पढ़ाई से अलग हटके बात हो, और आप चले जाओ उनके पास तो कोई भी टीचर कभी आपको मना नहीं करता कि ये नहीं है। अगर आप चले जाओ वो आपको बताएंगे जो आपको पूछना होगा। आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, या आपकी कोई प्लान है उस पर आप बात कर सकते हो। कुछ टीचर्स ने तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत हेल्प की। मनमीत मैम ने मतलब बहुत सपोर्ट किया मीडिया रिसर्च के टाइम पे। उन्होंने बताती थी साथ ही साथ पूरी रिसर्च के ड्यूरेशन में। और यशस्विका मैम, उन्होंने एक फिल्म एप्रिसिएशन में जो देखने का वो था उसको एक अलग ढंग दिया, थोड़ा समझाया। और भी टीचर्स थे, राहुल सर, उन्होंने रेडियो की एक समझ दी। हरजीत सर ने वीडियो से हमारा इंट्रोडक्शन कराया। सुमंत्रा सर ने एक जो होता है कि रियल वर्ल्ड में जो वर्ल्ड है उसमें सिनेमेटोग्राफी वगैरह में क्या सब चल रहा है, क्या जरूरतें होती हैं और क्या मतलब सीखना चाहिए, वो सब बताया। और भी सारे टीचर्स थे। अतुल सर, उन्होंने जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, अतुल सर बहुत मतलब ऐसे पढ़ाते थे कि सीधे दिमाग में जाता था। लास्ट सेमेस्टर पूरा नहीं हो पाया कोविड की वजह से, वरना जो मीडिया मैनेजमेंट है वो भी हम उनसे अच्छे से पढ़ पाते। लेकिन फिर भी जितना पढ़ा तो उसमें वो जिस ढंग से पढ़ाते थे, केस स्टडीज पढ़ा रहे हैं रिलायंस की या दूसरे उसकी, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत समझ में आता था। बाला मैम ने पढ़ाया तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में हमको पढ़ाया था, सबको शायद ऐसा चांस नहीं मिला, हमको मिला था।
तो उन्होंने हमें डिजाइनिंग वगैरह के बारे में बताया। तो वहां से एक जो समझ होती है मीडिया इंडस्ट्री को लेकर के होता क्या है, जो हम बस देखते थे, हम पहले आउटकम देखते थे कि पेपर हमारे हाथ में आ गया या टीवी हमने देखी, लेकिन इस कोर्स में हमें पता चला कि पीछे क्या होता है, कि पेपर छप कैसे रहा है या न्यूज जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके आ कैसे रही है। साथ ही साथ इंटर्नशिप करने को कहा गया था, तो कॉलेज से तो इंटर्नशिप भी की, पहले प्रिंट में की थी दैनिक जागरण। तो वहां पे सारा कुछ देखा कि प्रिंटिंग कैसे होती है, और वहां पे जो एडिटोरियल जो रूम है जहाँ पे खबरें लिखते हैं, वहां सब कैसे काम करते हैं, वो सब चीज देखी। फिर उसके बाद न्यूज चैनल में भी की, तो उसमें भी सारी चीजें देखी, उसमें इनपुट आउटपुट प्रोडक्ट सारी डेस्क देखी। साथ ही साथ पीसीआर में भी वहां गए, तो ये देखा कि एक्चुअल में कंट्रोल कहाँ से होता है, सारा कुछ कैसे विजुअल्स लग रहे हैं, ग्राफिक्स लग रहे हैं। साथ ही साथ मतलब मैंने तो गर्मियों में की थी, फिर भी एक जो स्ट्रेंथ फैक्ट था कि पीसीआर में मशीनों को ठंडा करने के लिए वो इतनी ज्यादा ठंडा कर देते थे कि ठंड लगाती थी। तो वहां पे कभी कभार टीपी चलाने के लिए जाते थे, तो टीपी ऑपरेट करना, तो एक एंकर के साथ काम करते करते तो वो काफी चीजें समझ में आई। एंकरिंग कैसे कर रहा है, चीजों को समझ रहा है। हम देखते थे कि खत्म हो गया है कंटेंट, लेकिन पीछे से वॉइस कमांड एंकर के पास चली गई कि कंटिन्यू टिल 1 मिनट, ब्रेक तक कंटिन्यू करो, तो वो कंटिन्यू कर रहा है, उसको वो कर रहा है, तो पीछे का जो सीन है वो समझ में आया। और साथ ही साथ ड्यूरेशन में अलग अलग जगह अलग अलग दोस्त भी बने। दैनिक जागरण में गए, वहां के दोस्त बने, तो उनके साथ भी ऑफिस में अलग चल रहा है, बाहर अलग दोस्ती और फन वगैरह रहता था। न्यूज चैनल में गए, वहां पे भी अच्छी दोस्ती हुई, अच्छे सीनियर्स मिले, उन्होंने कई चीजें सिखाई, अलग अलग जो एक प्रोफेशनल होता है वो देखा हमने। मीठी, तुम क्या बताओगी, I mean, about your friends and teachers and the way you have been enjoying the campus life for the last 2 years? ऑनेस्टली कमिंग टू डीएमई मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, जो मैं अब बोलती हूँ। फर्स्ट टाइम आई थॉट, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू सेटल, तो फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा मे बी 1-2 मंथ्स के लिए लगा था, बट नाउ आई फील जितनी अपॉर्चुनिटीज मुझे यहाँ मिली है शायद मुझे अपने स्कूल में नहीं मिली। अगर मुझे स्कूल में मिली होती तो मैं अपना फील्ड तभी डिसाइड कर ली थी कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। एंड व्हेन कमिंग टू डीएमई, teachers are very nice. I have a very good relation with every teacher because I feel that I get equal attention and equal support from teachers. So I cannot decide that to which teacher has a good relation or not. But one teacher that I adore and I respect a lot is Bala ma'am. I feel that she is my best friend in college. I literally go to her and discuss everything. Ma'am, I want to participate in this. आप permission दे दो. Ma'am, I want to participate. Ma'am, idea बता दो. Ma'am, I want to do this project. मैं कर सकती हूँ. आप मुझे कुछ suggestion दे दीजिए. Other than ma'am मुझे theatres भी suggest करती थी. Drawings के बारे में भी ma'am मुझे art के बारे में बताती थी. तो मैम से एक जो रिलेशन रहा मेरा स्टार्टिंग से और अभी तक, वो बहुत ही यूनिक है। एंड आई फील ये मैं कॉलेज के बाद भी एज अ स्कूल मेमोरी आई डोंट हैव एनी, बट remember after college as well. And when coming to friends, there is one friend who was from day one till now, and that is Chavi, and she is like very close to me, sir. We don't have any grudges or any jealousy, nothing. We both are good in studies, we both do a lot of activities, we both are food bloggers. She keeps on supporting me. Bro, you do this, bro, ऐसे करो, ऐसे collaborate करो, bro, ऐसे करो. So that friendship I was in need, because my was in quarantine, so I was very upset that I could not celebrate it, but she made it special. She and Shavi and Megha, they both made it so special for me, this quarantine birthday. So I realized that friends are gems if you keep them and if you know them. And campus life is completely amazing, sir. For me, it's like if after lockdown, if college opens, I'll be there on Sunday also. For 2-3 hours, I'll do all the activities and I'll say no to any activity. I'll be there on Sunday. तो हम लोग तो रोज जा ही रहे हैं, अभी भी आ सकती हो अगर मिस कर रही हो। telling Kamil sir कि sir, if you have any work, just I'll be there. आप मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगी और सब करने के लिए रेडी, कोई भी एक्टिविटी के लिए भी। Okay, so Shreya, I mean, what has been there for the last 1 year? You have spent 1 year. So, what will you tell us about your friends and teachers and the campus? Unmute karo. Unmute. Yes, sir.
सर देखो श्रेया, अनम्यूट ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो बैकग्राउंड नॉइज है थोड़ी यहाँ पे, इस वजह से मैं अनम्यूट कर। चलो ठीक है, हाँ बोलो। सर एक्चुअली 1 ईयर ही हुआ है, बट आई थिंक ये प्लेस ने मतलब डीएमई हैज चेंज्ड माय लाइफ एंटायरली। मतलब मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था। मैंने डीएमई चूज किया। आई एम सो लकी बिकॉज यहाँ की फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है। मैंने ऐसी फैकल्टी ना कभी सुनी है, और मतलब जब मैंने एक्चुअली ये चीज खुद एक्सपीरियंस करी तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा था मुझे। हर एक टीचर, अभी तक जितने भी टीचर से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, सारे ही बहुत अच्छे हैं। सबने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं बहुत ही ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस और इन सब चीजों में मेरे बहुत ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस है, ऐसी नहीं थी मैं। तो मेरे को टीचर्स ने इतना ज्यादा मोटिवेट किया है, स्पेशली दीपिका मैम। दीपिका मैम हमेशा मुझे बहुत ज्यादा पुश करती हैं कि तुम इस चीज में पार्टिसिपेट करो, सब चीजों में पार्टिसिपेट करो। तो दीपिका मैम ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इसके अलावा मोहित सर, कामिल सर हैं, सुकृति मैम, ये सारे टीचर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मतलब और सचिन सर ने भी, वो इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थे। हमेशा उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो फैकल्टी बहुत बेस्ट है डीएमई की। और इसके अलावा फ्रेंड्स तो मेरे फर्स्ट डे ही आते ही सब बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। बट स्पेसिफिकली श्रुति पांडे, तनीषा गुप्ता, शिव धवन और शुभांकर, ये सारे स्पेसिफिक लोग हैं जिनसे मेरी बहुत ही ज्यादा क्लोज बॉन्डिंग है। और सबके साथ अलग अलग टाइप के डायनामिक्स है मेरे। तो तनीषा इज माय बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है हर चीज में। तो ये सब मेरे काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो जितने फ्रेंड्स का तुमने नाम लिया, कि मैं ज्यादातर को जानता हूँ, तो किस फ्रेंड से तुमने क्या सीखा ये बताओ। शिव से मैंने कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं अपने अंदर, वो सीखा है। मैं फर्स्ट डे जब शिव से मिली थी, मुझे वो बहुत अनोइंग लगा था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था शिव, बिकॉज वो पूरा क्लास में अपना बता रहा था कि आई एम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और ये वो, और मैं उससे काफी ज्यादा जेलस हो गई थी। मैं कहा अच्छा ये तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। एंड कामिल सर को उसने काफी इम्प्रेस कर दिया था, तो मैं उससे काफी ज्यादा जेलस थी। बट देन जब मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ, मैंने रियलाइज किया देयर इज दिस कॉन्फिडेंस दैट ही हैज इन हिम, जिस वजह से लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से उससे मैंने ये चीज काफी ज्यादा सीखी है। बाकी सारे फ्रेंड्स मेरे काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। और नहीं नहीं, और हर बताओ ना, शिव धवन से तुमने कॉन्फिडेंस सीखा, और किसी दूसरे फ्रेंड से क्या सीखा वो भी तो बताओ। और सर बाकी तो जितने भी दोस्त हैं मेरे वो उनसे उनसे मैंने क्या सीखा सर, और वो लोग। बाकी तुमने एक फ्रेंड की तारीफ की, बाकी नाराज हो जाएंगे तुमसे सब। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना कि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा नहीं तो सपोर्ट और, किया। तो और लोगों की भी तो थोड़ी तारीफ करो ना, और जो फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। सर मैं जितनी, मेरे अंदर बहुत ज्यादा कम कॉन्फिडेंस है और मैं कम चीजों में पार्टिसिपेट करती हूँ। बाकी तनीषा, शुभांकर और ये लोग तो क्या कहते हैं, मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं एंड एवरीथिंग। मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ कि तुम पार्टिसिपेट क्या करो या ये क्या करो। बट वो लोग मेरा सपोर्ट सिस्टम है। और क्या कहते हैं, वो लोग काफी ज्यादा इंटरैक्टिव और उस तरह से है कि मतलब मुझे उनको देखकर लगता है कि हाँ, इस तरह से इंटरैक्ट करना चाहिए लोगों से। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं उनके। सो दैट इज इट। Okay, so now moving back to Adarsh. Adarsh, what will you tell us about the support that you have been getting from your family and parents? सर मेरा घर एक्चुअली यहाँ पे यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है हाथरस, मैं वहां से हूँ। तो मैं बाहर रह रहा था, मैं काफी सालों से बाहर हूँ घर से, तो अभी भी मैं बाहर था। तो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्ट तो यही है कि वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि एक घर जैसा माहौल, घर जैसा कई चीजें हो पाती हैं जो बाहर रहते हैं वही समझ पाते हैं कि जितनी जो प्रॉब्लम फेस करते हैं हम बाहर रह के। तो साथ लेकिन पेरेंट्स ने एक तो जाने दिया, उसके बाद वो टाइम टाइम पर पूछना सब प्रॉब्लम्स को उनके साथ, मतलब काफी फैमिलियर रहे वो, काफी फ्रेंडली रहे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो उनको बता दो सब चीजों से। मतलब हमेशा कॉल करके कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते थे कि ये करो वो करो, उनसे कुछ बता रहे हैं तो उस मामले में बिल्कुल अच्छे से एडवाइस दे रहे हैं। कभी घर से कॉल आते ही रहते थे, तो दिन में किसी से बात हो गई, लगा के इसका मूड ऑफ है तो थोड़ा मुझे हंसाया, कुछ किया। तो पेरेंट्स ने बहुत वो किया। साथ ही साथ जो पढ़ने लिखने के मामले में, जैसे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ वो कर रहा हूँ, तो उसमें वो और अप्रिशिएट करते थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे कि और पढ़ो। जब घर पे आ रहा हूँ तो उसी हिसाब से बातें करते थे कि पढ़ो थोड़ा, फिर समझाते थे उस बारे में और सपोर्ट करते थे हमेशा। Okay, so moving on to Mithi.
What will you tell us about your parents? Though you were referring already, but what more you can tell us? So actually, I think my parents are very supportive, and I feel very blessed that I have them as my parents, because I don't remember even one time when they said no to me for anything. I want to go on a trip. Okay, beta, you can go on a trip. I want to go here. You can go here. I want to do this, that I can do. You can do this. Because I remember one incident in my school. So because I just used to hate maths a lot. So my dad told me take commerce with maths. So I took commerce with maths, and I was scoring good in all the subjects like 99, 95. And in maths I was scoring 1, 2, 3. So I told, one day I came to him and I said, Papa, I can't do this maths. It is very difficult. So he told me कि अच्छा but give it a last try. मैं home tuition लगा देता हूँ आपको, आप घर पे पढ़ो special एकदम उसमें. So I told him कि नहीं हो पाएगा. It's just a wastage of money. So he told me कि एक try दे दो मेरे लिए. So I decided कि ठीक है, I'll do it. आप home tuition लगा दीजिए. And then I still remember in my final paper in 11th, I scored 3.5 marks. And my in charge called my dad, said that she has failed in maths. So I just got a little scared that scoring a good marks all the time live and then scoring 3.5 marks. I just can't मतलब imagine नहीं कर पाई पापा का क्या situation या क्या reaction रहेगा. But पापा बहुत politely मेरे पास आए and he said कोई बात नहीं बेटा, physical education ले लो, let's go to school. So उन्होंने मुझसे एक बार फोर्स नहीं करा, बहुत सैड नहीं दिखाया कि वो बहुत सैड है कि मैं फेल हो गई, 3.5 मार्क्स लाई हूँ 100 में से. तो वो चीज मुझे रियलाइज हुई कि when he is so supportive. And when it comes to my mom, she's housewife and she is like best mom. मतलब so she's my best friend. I share every single thing. आज कॉलेज में ये हुआ मम्मा, आज मैं यहाँ गई दोस्तों के साथ घूमने के लिए, आज मैं कॉलेज बंक कर रही हूँ मम्मा और हम यहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए. So, अच्छा मतलब बंक करती हो क्या? सर मैंने अभी तक 2 दिन बंक करा है कॉलेज. एक दिन मैं मूवी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ और एक दिन छवि हम सब मूवी देखने गए थे. तो 2 तो मैंने बंक करा है, 2 दिन कॉलेज बंक करा है मैंने बिकॉज वो एक्सपीरियंस मुझे लेना था सर. दैट्स व्हाई. अदरवाइज वैसे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी सर, बिकॉज इतनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हूँ मैं कि मुझे कॉलेज आना ही पड़ता है. अगर मैं सोचूं आज छुट्टी ले लूँ तो मुझे 2 बजे आना, तो मैं सोचती हूँ चलो 10 बजे ही पहुंच जाती हूँ कॉलेज, क्योंकि जाना तो है ही. इसके अलावा मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है. सो मुझे हमेशा से पता चला है कि जॉइंट फैमिली के साथ आप सब कुछ कर सकते हो. ऐसा नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शंस है, आपको पर्सनल स्पेस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर. सो मैं इतनी लकी हूँ कि जॉइंट फैमिली भी है और हम सब इतना एंजॉय करते हैं, सारे फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं. तो इसीलिए और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा मेरे एक्टिविटीज है पढ़ाई पे उसको लेके. Okay. So Shreya, what will you tell us about your family and your brothers, sisters, whatever you want to tell us? तो पहले जब स्कूल में थी तब मेरे और मेरे पेरेंट्स के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे, बिकॉज ना मेरे मार्क्स बहुत अच्छा आ रहे थे. आई वाज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, तो ज्यादा मेरे मार्क्स नहीं आते थे और दे वर नॉट हैप्पी विद इट एंड एवरीथिंग. बट करियर के लिए क्या चूज करना है या फिर फ्यूचर के लिए क्या करना है, उसके लिए उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया. दे वर ऑलवेज लाइक कि जो करना है वही करो, तुम्हारी जो मर्जी है. तो मैंने उनको ऐसे बोला था कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, तो दे सेड ओके. तो जब हमने एंट्रेंस वगैरह दिया, मैं आ गई कॉलेज में और फिर मेरे मार्क्स, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ और कैसे मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे मार्क्स भी अच्छा आ सकते हैं. इट वाज रियली बिजार. मैं बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रही थी कि ऐसे मार्क्स आए कैसे मेरे. बट देन मेरे पेरेंट्स को लगा कि ठीक है, कि मतलब अगर इसका इंटरेस्ट वाला फील्ड है तो मे बी इस वजह से ये ला पा रही है. तो उसके बाद मेरा और मेरे पेरेंट्स का काफी ज्यादा एक स्मूथ पेस पे आया रिलेशनशिप. तो अब बहुत ही अच्छा है. दे आर लाइक अच्छा ठीक है, क्या बेटा क्या करना है तुम्हें, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग पापा ये वो. तो वो दे आर ऑलवेज लाइक कि ठीक है, तुम्हें अब जैसे ठीक लगे वैसे करो, वी आर नॉट गोइंग टू प्रेशराइज यू फॉर एनीथिंग. तो उन्होंने मतलब काफी ज्यादा सपोर्ट किया मुझे. Great. So moving on to Adarsh. Adarsh, can you tell us in very brief what you're going to do now? Will you join the industry, take up the job, or you will further study? सर मैंने पहले भी सोचा था कि अप्लाई करूंगा अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए. तो मैंने अप्लाई किया था MCU के लिए, तो वहाँ मैं सिलेक्ट हो गया, तो वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया है. अब 1 अक्टूबर से मैं मास्टर इन आर्ट्स जर्नलिज्म की क्लासेस स्टार्ट होंगी मेरी. उसके बाद तो अभी तो पढ़ना है, 2 साल मास्टर्स करना है. उसके अभी बाद तो ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी ना? जी सर, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी. तो उसके बाद अगर जब ऑफलाइन होंगी तब तुमको फिर भोपाल जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए? यस सर.
So, Miti, what would you like to tell us? Because we want to towards the conclusion of the program. Any such thing which you have not said yet, or I have not asked to you? Any such thing you want to say? Sir, I just want to say everyone that until and unless you open up and participate, you won't get the confidence. Because participation करने से आपको सिर्फ ये नहीं, आपको participation certificate नहीं चाहिए, आपको एक experience चाहिए जो आप अपने future में use करेंगे. जब आप अपना रिज्यूम भेजेंगे वहाँ पे, तो आपको आपके मार्क्स पे नहीं देखेंगे, वो आपको आपके एक्सपीरियंस पे देखेंगे कि आपके ऑफिस में आपको कितना सूट करेंगे. Right, yeah. छोटा competitions would do a wonder for you. Okay, and then Shreya, any one thing that you want to say in brief? So I just want to say that कि मैंने अभी तक जितना कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप किया है, इट्स जस्ट बिकॉज द फैकल्टी मुझे इतना ज़्यादा पुश किया है उन्होंने, और मैं आगे भी ट्राई करूंगी कि मैं और भी ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट करूं ताकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आए. So that is it, sir. So that's a very positive thing that you are thinking. Now we are moving towards the close, but before the closing, I would like to thank my faculty members and the team, with the help of which I am able to produce this program, particularly making a mention of the creative and the production team, which comprises Deepika Dhawan, Sumantra Sarthi Das, and Ritik Ghosh, and of course Dr. Susmita Wala, and the entire team of the faculty members of DME Media School. They have been behind this show, so I thank you all. I thank you three also to make this whole session so interesting and lively. Thank you all. Thank you, sir.